Good morning, students. In the last class, we have completed a topic that is debentures and what is the basic difference between the shares and debentures and commercial bank, and we had also completed next topic that is public deposit and loan from commercial bank. What are the basic difference between the public deposit and the loan from the commercial bank? Okay, so in today's class we are going to start a next topic that is loan from financial institution. It is also the one of the borrowed fund, and it is the long term finance, whereas the loan from commercial bank is just kind of short term and the medium term finance, and the loan from the financial institution is the type of the borrowed fund for the long term finance. Okay, so let's start. Public financial institutions are referred to as lending institutions, development banks, or financial institutions. After independence, the government of India realized that for economic development of a country, only commercial banks are not sufficient. There must be financial institution to provide financial assistance and guidance to industries and business enterprises. The need for the public financial institution was felt due to the following reason. Okay, so in the financial institution, it includes it the basic motive of the financial institution is to provide the fund to the members or to the general public. If the any individual is needy for their expansion and the growth of the business, they need some kind of fund. So what they will do, they prefer to go to the some financial institution where they got the some amount of funds as capital, so that they can invest in their business. Okay, so in the financial institution, it is basically related to the lending institution, means the that institution which provide the fund, development banks, as well as financial institution. Okay, public financial institution includes three types: lending institution, development banks, or the financial institution. But after independence, the government of India realized that for economic development of a country, only commercial banks are not sufficient. Okay, after independence ये देखा गया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अगर किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, कोई भी कंट्री है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, सो ओनली कमर्शियल बैंक्स आर नॉट सफिशिएंट. ओके, कि कमर्शियल बैंक्स ही क्या हैं, सफिशिएंट नहीं है. बेसिकली इफ़ एनी कंट्री वांट टू growth and development, in that case they required some kind of funds, so that the government of India realized that the only commercial banks are not enough to provide the all kind of funds, so there must be a financial institution to provide financial assistance. Okay, तो क्या होना चाहिए, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होने चाहिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस और हेल्प प्रोवाइड करे एंड गाइडेंस टू द इंडस्ट्रीज़, और इंडस्ट्रीज़ को भी क्या करे, वो गाइड करे कि कहाँ पे इन विच सिचुएशन द मनी शुड बी इन्वेस्टेड, वेयर, and different kind of all the questions which is related to the development and the growth of the business and business enterprises. Okay, they have provided the financial institution provided the guidance to the industries and the business enterprises. So the need for the public financial institution was felt due to the following reason. Okay, why there is need of the public financial institution? It is only because of these reason. Okay, so first one is the merit of the financial institution is long term finance. Financial institution provide the long term finance. जो financial institutions होते हैं वो long period of time के लिए finance provide करते हैं. Managerial advice, financial institution provides managerial as well as financial advice on the various matter. Okay, financial institution क्या करते हैं, managerial means related to the management
और द एडमिनिस्ट्रेशन, इससे रिलेटेड क्या करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और कि आपको कैसे वर्क करना है, फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करती है. सो financial institution also works like that. Next is medium and long term finance. Public financial institution provide medium and long term finance to industrial enterprises at the reasonable rate of interest. जो public financial institutions होते हैं like development banks, financial institution, lending institution, वो क्या करती हैं मीडियम और लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं टू द इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस. जो इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं, इंटरप्राइजेज हैं, उनको फंड प्रोवाइड करती है एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट. मीन्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो अफोर्डेबल होता है. मीन्स कोई भी कंपनी क्या है उसको अफोर्ड कर सकती है. नेक्स्ट वन इज सब्सक्राइबर ऑफ सिक्योरिटीज़. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफन सब्सक्राइब टू द शेयर्स एंड डिबेंचर ऑफ द कंपनी. जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो क्या करती हैं, वो कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर डिफरेंट सिक्योरिटीज़ को भी सब्सक्राइब करती हैं. ओके, दे आल्सो इशूड they also purchase and sell the different securities of the companies. Next one is underwriter. Financial institution underwrite the public issue of shares and debentures by the company. Okay, basically underwriters क्या होते हैं, underwriting activities means कंपनी क्या होती है, मीन्स जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं दे ऑल्सो हेल्प दी अदर कंपनी की. वो ये हेल्प करते हैं कि अगर आपको अपनी कंपनी के शेयर्स और डिफरेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज और सेल करना है तो आप क्या करो, वो मेरे को दे दो. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहेगी कि आप मुझे दो, मैं क्या करूँगी या करूँगा कि उसको मेरे के थ्रू उसको मेरे को क्या जनरल पब्लिक को क्या करना पड़ेगा, उसको लोग मेरे से क्या करेंगे, परचेज और सेल करेंगे. बट इसमें क्या है कि वो कंपनी से क्या कहती है कि वो डिफरेंट चार्ज भी करेगी. ये नहीं कि वो ये सारे काम क्या है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करे. इसमें क्या करती है जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो ये कहते हैं कि इस पे भी हम अपना कुछ कमीशन चार्ज करेंगे. सो दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आर अंडर राइटिंग एक्टिविटी. सो डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो डन दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़. Next one is guarantee loan. Financial institution provide long-term guarantees to the industrial units from other bank and financial institution. Okay, so जो financial institution होती हैं वो क्या करती हैं, लोन भी प्रोवाइड करती हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स को फ्रॉम दी अदर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. और किसी नॉर्मल बैंक से भी प्रोवाइड कर सकती हैं, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी वो प्रोवाइड करती हैं. लोन इन फॉरेन करेंसी. Financial institution provide loan in foreign currency to import machinery. Okay, financial institution क्या है, लोन प्रोवाइड करती हैं इन फॉरेन करेंसी. मींस डॉलर में, यूरो में, रेनमिंबी में, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ जो फॉरेन करेंसी है उसमें भी क्या करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन प्रोवाइड करती है टू इम्पोर्ट मशीनरी. कि जो भी मशीनरी हैं उसको हम कंट्री में क्या कर सके, इम्पोर्ट कर सके. These institutions provide guarantee also for the purchase of the capital goods from the foreign country. Okay, these institutions क्या करती, गारंटी प्रोवाइड करती हैं for the purchase of the capital goods. Capital goods means कि those goods which are used for the further production. कि further production के लिए हम इन सारे का गुड्स को यूज़ करें. फॉर एग्जांपल मशीनरी हो गया, टूल्स हो गया, इक्विपमेंट हो गया. तो ये जो सारी इंस्टीट्यूशन होती हैं वो गारंटी भी प्रोवाइड करती फॉर द परचेज ऑफ द कैपिटल गुड्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्री. कि वो फॉरेन कंट्री से उन सारे कैपिटल गुड्स को भी वो परचेज कर सके. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. So too many formalities have to be fulfilled for taking loan from the financial institution. Okay, so बहुत सारी जो लीगल उनकी क्या है, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसको क्या करना पड़ता है, उसको भी पूरे को फॉर्मेलिटीज़ को फुलफ़िल करना पड़ता है फ्रॉम टेकिंग द लोन फॉर टेकिंग द लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. So they may put certain restriction on such as restriction on dividend payment. Okay, different kind of restrictions भी क्या करती है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर देती है, सच एज
जी जो भी डिविडेंड पेड किया जाता है उन सारे पे भी क्या है जो पेमेंट उसका करना है, तो उस पे भी क्या है जो शेयर्स लोग ले रहे हैं तो उस पर डिविडेंड पे करना है, तो इन सारे पे भी क्या करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पुट सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑल्सो. Next one is sometimes financial institution appoint their nominees as board of director to restrict the power of the company. कभी कभी ऐसा होता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती हैं वो अपने नॉमिनी को अपॉइंट देयर नॉमिनी एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि उस कंपनी के एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी अपॉइंट कर देती है टू रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ अ कंपनी, कि जो भी कंपनी के पावर है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक नॉमिनी को भी अपॉइंट कर देती है. सो दीज ऑल आर द सम लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ओके, now the next is intercorporate deposit, which is also the one of the borrowed fund for the short term source of finance. Okay, so it is the deposit which is made by the one company with another company. This option of using finance is available to all public company whether having share capital or not. Okay, simply इसमें क्या होता है कि एक कंपनी, अगर एक कंपनी है तो दूसरी कंपनी में क्या करती है, इट इज़ अ डिपॉजिट विच इज़ मेड बाय द वन कंपनी टू अनदर. वो डिपॉजिट एक कंपनी क्या है किसी दूसरी कंपनी में क्या करती है, डिपॉजिट करती है. दिस ऑप्शन ऑफ यूजिंग फाइनेंस इज अवेलेबल टू ऑल पब्लिक कंपनीज. ओके, ये सारी जो कंपनीज होती हैं पब्लिक कंपनी में, ये सारे में क्या ये ऑप्शन अवेलेबल होता है वेदर हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट, चाहे वो उनका उससे रिलेटेड शेयर कैपिटल उनकी कंपनी का हो उनके पास चाहे ना हो, बट वो क्या करती है डिपॉजिट वन कंपनी का दूसरी कंपनी में होता है. इट इंक्लूड्स व्हेन अ कंपनी एक्वायर सिक्योरिटी ऑफ अनदर कंपनी. ये क्यों होता है, क्योंकि जब कंपनी क्या है एक्वायर करती है सिक्योरिटी ऑफ अनदर कंपनी, कंपनी की अनदर कंपनी की वो सिक्योरिटी अपने पास एक्वायर करती है. व्हेन कंपनी गिव्स लोन टू दी अनदर कंपनी, जब कंपनी क्या करती है दूसरी अनदर कंपनी को लोन प्रोवाइड करती है. एंड व्हेन अ कंपनी गिव्स गारंटी टू एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु प्रोवाइड्स लोन टू दी अनदर कंपनी. ओके, ये भी होता है कि जब कंपनी क्या है गारंटी प्रोवाइड करती है टू एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन, ये गारंटी किसको प्रोवाइड करेगी, पर्सन को और इंस्टीट्यूशन को, हु प्रोवाइड्स लोन टू अनदर कंपनी, जो लोन क्या है किसी अनदर कंपनी को प्रोवाइड कर रहा है. In general, we can say that companies arrange fund from another company. It is intercorporate deposit. Means simply इसका मतलब यही है कि कोई भी कंपनी, अगर एक कंपनी है वो क्या करी है अरेंजमेंट करी है फंड का, कहाँ से करेगी वो अनदर कंपनी से. तो दिस इज कॉल्ड इंटरकॉर्पोरेट. मीन्स कॉर्पोरेट के इंटरली सब कुछ क्या हो रहा है डिसाइड हो जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं इंटरकॉर्पोरेट डिपॉजिट. ओके, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरकॉर्पोरेट डिपॉजिट्स. फर्स्ट वन इज 3-month डिपॉजिट, 6-month डिपॉजिट एंड कॉल डिपॉजिट्स. सो 3-month डिपॉजिट, this is the most common deposit to overcome the short term finance problem. The annual rate of interest given for 3-month deposit is 12% per annum. Okay, तो ये क्या है, ये मोस्ट कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है फॉर दी शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रॉब्लम. किसी भी कंपनी को क्या है शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रॉब्लम है, सो दैट कंपनी विल प्रेफर टू गेट द फंड फ्रॉम दी अनदर company. Okay, so for the shorter period of time, so the annual rate of interest for the 3 months is deposit at the 12% per annum. ठीक है, जो annual rate of interest पे करना है for 3 months is 12% per annum. Next is 6-month deposit. These are made with the first class borrower. ठीक है, जो फर्स्ट क्लास बोरोवर है जिसके साथ उसके गुडविल, क्रेडिट वर्दीनेस ये सारे अच्छे होते हैं, उनके साथ क्या करती है कंपनी, उनसे डिपॉजिट लेती है और जो उस पर एनुअल इंटरेस्ट मिलता है वो किस रेट पे मिलता है 15% पे. नेक्स्ट वन इज कॉल डिपॉजिट. दिस कैन बी विथड्रॉन बाय द लेंडर बाय गिविंग 1 day नोटिस. द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. ये कैसे विथड्रॉ कर सकते हैं कि 1 day बिफोर 1 day वो क्या नोटिस देगा कि मुझे क्या करना है, डिपॉजिट करना है या पैसे को लेना है, तो एक दिन पहले वो क्या करेगा एक नोटिस प्रोवाइड कर देगा और जो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा
percent. Okay, so the biggest advantage of ICD is that transaction are free from the legal and bureaucratic hassles. Okay, बेसिक इसका एडवांटेज बिगेस्ट यही है कि जो ट्रांजेक्शन्स हो रहा है बिटवीन द कंपनी, ये क्या है कि सारे लीगल और ब्यूरोक्रेटिक हेजल्स से बहुत ज़्यादा फ्री है. इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, बहुत लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं करना है. ओके, सो ये इसका सबसे बिगेस्ट ICD का, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का एडवांटेज होता है. ओके, नेक्स्ट वन इज़ what are the different merits of the ICD? First is secrecy. The broker in this market never reveal their list of lender and borrower. These deposits are suitable for borrowing company to solve their short-term funds problem immediately, free from bureaucratic and legal प्रॉब्लम. ओके, सीक्रेसी यही होती है कि जो ब्रोकर है मार्केट में वो सारी इन्फॉर्मेशन रिवील बाहर नहीं करता है कि कितना, कौन कंपनी का क्या है लेंडर है, कौन उसका बोरोवर है. ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन बाहर मार्केट में नहीं पहुंचती है. इससे क्या होता है, सीक्रेसी मेंटेन होती है. सेकंड इज दीज डिपॉजिट आर सुटेबल फॉर बोरोइंग कंपनी टू सॉल्व देयर शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम और शॉर्ट टर्म फंड्स प्रॉब्लम इमीडिएटली. इसमें क्या होता है कि ये डिपॉजिट इसलिए भी बेटर होता है बिकॉज इसमें क्या है कि कोई भी कंपनी क्या है शॉर्ट टर्म के लिए फ़ंड की प्रॉब्लम को फेस करी है, तो वो क्या करेगी, ईज़िली किसी भी कंपनी से क्या कर सकती है, फ़ंड को बोरो कर सकती. इमीडिएटली उसको अगर चाहिए तो वो किसी भी कंपनी से क्या है, बोरो कर सकती है, फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक एंड लीगल प्रॉब्लम्स. ओके, जो भी सारे हेजल्स हैं डिफरेंट फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ फंड, तो इसमें क्या है, इसमें सारे ब्यूरोक्रेटिक और जो लीगल प्रॉब्लम्स है, लीगल रिस्ट्रिक्शंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन से क्या है, ये फ्री है. ओके, नेक्स्ट इज डीमेरिट्स. ओके, फर्स्ट वन इज़ नॉट सुटेबल फॉर द लॉन्ग टर्म. ये जो ICD है दिस इज़ नॉट सुटेबल फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, की किसी को लॉन्ग पीरियड के लिए लोन लेना है, बोरो करना है, डिपॉजिट करना है, इन दैट केस इट इज़ नॉट सुटेबल. सेकेंड इज हाई रिस्क एज ICD आर अनसिक्योर डिपॉजिट. ओके, इसमें क्या है, रिस्क बहुत ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि जो ICD होता है ये अनसिक्योर डिपॉजिट मीन्स हो सकता है कि फ्लक्चुएशन की वजह से ये जो वैल्यू है वो क्या हो, फ्लक्चुएट कर जाए, इसलिए ये अनसिक्योर्ड है, तो इसमें रिस्क क्या है, बहुत ज़्यादा होता है. एंड हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द बैंक. ओके, बैंक में क्या है कि हो सकता है वो लोन ले तो उसको 5 to 6% और 10% तक अराउंड उसको इंटरेस्ट देना पड़े, बट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इन द ICD इट इज़ टू मच हायर देन द बैंक. ओके, सो इट इज़ योर ICD topic, intercorporate deposit. It is also the one of the borrowed fund short-term finance sources of finance. Okay. Now the next topic is factors kept in mind before selecting a suitable source of business finance. Okay. Factors which should be kept in mind कि हमें ये ध्यान देना पड़ेगा बिफोर सेलेक्टिंग अ सुटेबल सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस. बिजनेस फाइनेंस के लिए कौन सा सोर्स हमारे लिए बेस्ट होगा, इसके लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमेशा हमारे माइंड में होने चाहिए. ठीक है, हम कोई भी अगर कोई सब्जेक्ट को लेते हैं, कोई स्ट्रीम को चूज़ करते हैं, या अपने फ़ंड को कहीं इन्वेस्ट करते हैं, या बिज़नेस में कहीं कोई इन्वेस्ट करता है, तो वो ऐसी तो नहीं रैंडमली फ्रीक्वेंटली कर जाते. उसके लिए क्या करता है, वो पूरा उसको सोचता है कि हमें करना चाहिए कि नहीं. सो इन द केस ऑफ सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस देयर आर ऑल्सो सम फैक्टर विच शुड बी केप्ट इन माइंड. ओके, सो no source of business finance is free from limitation, so we cannot say which is the best source of finance. Okay, कोई भी बिजनेस फाइनेंस, कोई जो डिफरेंट सोर्सेज हैं, ऐसा नहीं है कि वो लिमिटेशन से फ्री हैं कि मैं ये किसी एक को फर्स्ट वन को कह दूं कि शेयर इज़ द बेस्ट और द डिबेंचर इज़ द बेस्ट और पब्लिक डिपॉजिट इज़ बेस्ट. नहीं, क्योंकि हर एक फंड्स के क्या हैं, सोर्सेज के, बिजनेस फाइनेंस के जो सोर्सेज हैं उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती ही हैं. सो वी कैन नॉट से
विच इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। हम नहीं कह सकते कि कौन सा बेस्ट होता है। बिफोर डिसाइडिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, द बिजनेस मैन मस्ट कीप इन माइंड द फॉलोइंग फैक्टर्स। ओके, कि किस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को हमें लेना है, हमें कहाँ से फंड को लेना है, इसको सेलेक्ट करने से पहले वी शुड टेक सम कॉन्सेंट्रेशन और सम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, कुछ हमारी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, दैट कि फ्रॉम वेयर वी हैव टू टेक दी fund or the finance for the business. Okay, so first one is cost involved. Okay, before finalizing any source of finance, the company must find out the cost involved in procurement of funds and cost involved in using the funds. Both the cost must be less than the benefit which they get by using that source of funds. Okay, बिफोर फाइनलाइजिंग एनी सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि हम ये फाइनल करने से पहले कि हम जो मनी है वो कहाँ से रेज़ करेंगे, शेयर से करेंगे या मनी हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक डिपॉजिट से करेंगे। सो इससे पहले कंपनी क्या करती है, कंपनी ये चेक करती है कि कंपनी मस्ट फाइंड आउट द कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, कि कितना कॉस्ट उसको इन्वॉल्व हो रहा है कि उस फंड को लेने का, मीन्स कितना उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ा। अगर वो 4 लाख ले रही है, 10 लाख ले रही है, तो उस 10 लाख पे उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन यूजिंग द फंड, और उस कॉस्ट को यूज़ करने के लिए कितना उसका कॉस्ट लग रहा है, जो वो फंड ली है उसको इन्वेस्ट करने के लिए उसको कितना कॉस्ट को बेयर करना पड़ रहा है। ठीक है, सो both the cost must be less than the benefit which they get by using that source of fund। और जो दोनों कॉस्ट हैं कि वो कहाँ से एक्वायर करेगी फंड और कितना कॉस्ट उसको फंड को यूज़ करने में बेयर करना पड़ेगा, तो ये जो सारे कॉस्ट हैं इट शुड बी लेस देन, ये हमेशा लेस देन होना चाहिए कि जो भी बेनिफिट हमें उससे मिलेगा व्हेन एवर द कंपनी इन्वेस्ट देयर फंड समवेयर। ठीक है, जो कंपनी कहीं भी उस फंड को इन्वेस्ट करेगी उससे जो कॉस्ट है वो क्या होना चाहिए, हमेशा जो हमारा जो बेनिफिट मिले वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए एज़ कंपेरिजन टू कॉस्ट इनकर्ड इन दी दैट बिजनेस। ठीक है, तो जो कॉस्ट इनकर हो रहा है, किस में हमारा कॉस्ट, जो हमको प्रॉफिट मिल रहा है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए जितना हमने कॉस्ट को इनकर किया है। ठीक, नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द फर्म। So if the firm is financially sound, then it may be prefer borrowed fund as it will be able to repay the borrowed fund and can easily pay the interest amount। Okay, अगर कोई भी फर्म क्या है, फाइनेंशियली वो कैपेबल है, इन दैट केस वो कंपनी क्या कर सकती है, वो बोरोड फंड ले सकती है, बोरो कर सकती है, बिकॉज इन दैट कंडीशन ही और दैट कंपनी इज़ एबल टू पे दी ऑल दी अमाउंट, कि वो क्या है, कैपेबल है कि वो सारे अमाउंट को क्या कर सके, सारे बोरोड फंड को वो ईजिली पे कर सके, एज वेल एज द अमाउंट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ पुट ऑन दैट अमाउंट। ओके, कि जो भी उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर कोई भी कंपनी फाइनेंशियली साउंड है या फाइनेंशियली वो कैपेबल है, इन दैट केस दैट कंपनी विल प्रेफर दी बोरोड fund। Okay, but if the firm is not financially stable, then it must depend upon the owners fund securities। अगर कोई भी फर्म क्या फाइनेंशियली वो इतनी स्टेबल और कैपेबल नहीं है, इन दैट केस उसे क्या करना चाहिए, ओनर्स फंड को यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। Sole proprietorship firm and partnership firm cannot raise fund by issue of shares or debentures. They have to depend upon the factoring, leasing, loan, trade credit, etc. Whereas joint stock company prefer issue shares and debentures to raise funds। Okay, जो भी sole proprietorship होते हैं, sole owner of the company और partnership, they cannot raise fund by the issue of share और debenture। वो अपने फंड को शेयर और डिबेंचर के थ्रू क्या कर सकते हैं, फंड को रेज नहीं कर सकते हैं। वो क्या है, टोटली डिपेंड किस पे करते हैं, फैक्टरिंग पे, कितने फैक्टर्स हैं, कितना उस पर इन्वेस्टमेंट किया गया है, लीजिंग पे जितना उन्होंने रेंट पे है, लोन कितना उन्होंने ले रखा है, ट्रेड क्रेडिट पे। तो बेसिकली क्या है, ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है और पार्टनरशिप होता है, दे टोटली डिपेंड अपॉन दी
कि वो मनी को क्या है रेंट पे फंड को क्या है वो किस तरह ले रहे हैं।